Hello everyone, I am Nilima Roy. I am from Ukilbajar Maktab, Silchar, Kachar, Assam. I have received National Award from Zero Investment Innovation for Education Initiatives ZIIEI for my innovation. My innovation's name is Great Personalities, Great Teachers. I innovated this idea because I have noticed that some of my students are not able to identify the pictures of great personalities placed on the wall of our classroom. So, to inspire them and to help them in gathering knowledge and to develop their moral and human values of life, I innovated this idea. To implement this innovation, at first, I have asked my students to draw a sketch or some symbolic images of these great personalities and discuss the struggles and achievements of these great personalities with them. I provided the picture of great personalities to my students, such as I provided the picture of Mahatma Gandhi and discussed Ahimsa Param Dharma. With the picture of Netaji Subhash Chandra Bose, I discussed Azad Hind Fauj. Likewise, I asked the students of junior classes to learn some quotes or phrases based on the great personalities and asked students of the senior classes to draw the sketches of these great personalities and write one quote or phrase on these great personalities. I have been implementing this innovation from 2019. My school and my students have benefited immensely through my innovation because now they have become more familiar with these great personalities and their life history. I am glad that Sri Aurobindo Society and HDFC Bank have given the opportunity to innovative teachers to share our innovative ideas online with you. I am hopeful that we will work together in improving the quality of education. To know more about such innovative ideas, please like and subscribe ZII YouTube channel. Thank you. Namaskar, myself Priyanka Dubey and I am teaching in Government Senior Secondary School, RK English Medium. This year I have received award for my zero innovation from ZIIEI and my zero innovation was a fun dictation. When I went to my classroom, I saw the children that they do not like the process of dictation. जब मैंने बच्चों से पूछा कि चलिए डिक्टेशन करते हैं तो उन्होंने कहा या तो वो बोर हो जाते हैं या तो वो ऐसे वर्ड्स लिख देते हैं जो जिसका मीनिंग ही नहीं रहता बट टू इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू एनरिच देयर वोकेबलरीज. So I thought of a new idea which is a fun dictation. In this dictation there are two types of dictation, that is a whispering dictation and running dictation. In whispering dictation the children stand in a row. The first student read the text and will whisper, मतलब फुसफुसाना, whisper to the second one to the third one to the fourth, and it will go on. And the last student will listen the टेक्स्ट एंड विल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. जो आखिरी बच्चा होता है वो ब्लैक बोर्ड में सेंटेंस को लिख देगा. उसी तरह हम इस पोजीशन को रोटेट करेंगे. द लास्ट वन विल कम टू द फर्स्ट सेकेंड. ऐसे ही करते हुए सारे बच्चों का टर्न आ जाएगा. जैसे आपकी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो आप उसे ग्रुप वाइज भी डिवाइड कर सकते हैं. एंड माई सेकेंड वन इज रनिंग डिक्टेशन, यानी कि भाग कर जो डिक्टेट करते हैं. इसमें क्या होता है, टीचर जो है क्लास टेक्स्ट जो है या तो क्लास के बाहर लगा देगी या तो कॉर्नर में लगा देगी जहाँ पे दूसरे बच्चे देख ना पाए. और जो बच्चे को टीचर भेजेगी टेक्स्ट पढ़ने के लिए, दैट चाइल्ड विल गो रीड, मेमोराइज एंड
will run back to the other child. यानी कि एक पेयर में दो बच्चे रहेंगे, एक बच्चा जाकर पढ़ेगा और भाग कर आकर दूसरे बच्चे को बताएगा, दूसरे बच्चे सुनकर उसे लिखेंगे और दूसरा बच्चा जब लिखेगा तब वह टीचर को दिखाएगा कि जो उसने बताया क्या उसने सुनकर वो ठीक से लिखा। टीचर देखेगी क्या उसने ठीक से लिखा, उस आधार पर अंक देगी और या तो अप्रिशिएट करेगी बच्चों को। सिर्फ अंक ना दिया जाकर हम बच्चों को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं ताकि वे और भी रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग वगैरह कर सके, उन्हें और भी इंटरेस्ट आए। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल है जिसके द्वारा मैं आपको समझाती हूँ कि विस्परिंग डिक्टेशन कैसे होता है। लेट्स सी। हियर द चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ रो और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला बच्चा जो है एक टेक्स्ट पढ़ता है लाइक टू प्ले, ये बच्चा दूसरे को बताता है, दूसरे तीसरे, ऐसे करके जो लास्ट वाले बच्चे रहते हैं वो इसे सुनकर जाकर ब्लैक बोर्ड में इसे लिख देता है। उसी तरह होता है रनिंग डिक्टेशन। रनिंग डिक्टेशन में एक पेयर में दो बच्चों को लिया जाता है और आप ध्यान दीजिएगा कि वह दो बच्चे एक दूसरे से एक बहुत अच्छा फ्रेंडशिप ना हो। आप बच्चों को रैंडमली सेलेक्ट कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रनिंग डिक्टेशन में। तो यहाँ पर आप देख लीजिए मैंने दो बच्चों को लिया है, तो एक बच्चा जाकर बाहर पे जो टेक्स्ट टीचर ने लिखा है वह उसे पढ़ेगा और मेमोराइज करेगा याद करके, क्योंकि उसे क्लास के अंदर आना है या वो बच्चे से वह दूर रहेगा, तो वो मेमोराइज करके, तो इससे जो है बच्चे की मेमोराइजेशन पावर भी जो है हम चेक कर सकते हैं कि बच्चा कितना याद रखता है। तो ये बच्चा याद करके आके इस बच्चे को बताएगा और यह बच्चा जो है लिख कर दिखाएगा और उसके बाद में यह बच्चा भी जाएगा, रोटेट द पोजिशन मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, यह बच्चा भी जाएगा, टेक्स्ट पढ़ेगा और आकर इसे बताएगा। ये हो गया हमारा रनिंग डिक्टेशन। ये है विस्परिंग डिक्टेशन एंड रनिंग डिक्टेशन। इसमें आप देख सकते हैं बच्चा पढ़ता है तो बच्चे की रीडिंग होती है, बच्चा जब इसे बोलता है तो इसकी लिसनिंग होती है, ये जब अगले बच्चे को कहते हैं तो इसकी स्पीकिंग होती है और जब बच्चा ब्लैक बोर्ड में लिखता है तो राइटिंग होती है। हम देख सकते हैं इस डिक्टेशन में चारों स्किल जो है हम ले रहे हैं, चारों स्किल जो एक लैंग्वेज सीखने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। This is the fun dictation which I have introduced with my children, and after introducing this I have seen that the children are very much excited। बच्चे बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कुछ नया सीखने मिलता है। इसमें जो है एक्टिविटी बेस्ड बहुत हो जाता है। They start liking this, they love running, speaking, telling to each other, they have fun, full time fun। but इस पे क्या है, they learn something, new words, new sentence and everything। And for my this innovation I am very much thankful that ZIIEI has given me the award, and also they have said me to share my views on fun dictation so that other teachers also get motivation and also get the ideas। And I am also very much thankful to HDFC Bank for sponsoring the ZIIEI and my school staffs and teachers and also my students। Thank you। नमस्कार, मेरा नाम कमलेश शर्मा है। मैं राजकीय प्राथमिक पाठशाला सेक्टर 22 फरीदाबाद हरियाणा में जेवीटी पद पर कार्यरत हूँ। मुझे मेरे नवाचार के लिए शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम में ZIIEI के द्वारा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुका है। मेरे नवाचार का नाम है व्यक्तिगत स्वच्छता एक अभ्यास। वर्ष 2017 में जब मैंने शिक्षा विभाग ज्वाइन किया तो मुझे अपने विद्यालय में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती थी बच्चों का साफ सफाई के प्रति ध्यान न दे पाना। जब भी मैं प्रतिदिन कक्षा में प्रवेश करती थी तो मुझे बहुत सारी अस्वच्छ स्थितियों का सामना करना पड़ता था। जैसे बच्चे नहाकर नहीं आते थे, ब्रश नहीं करते थे, उनके नाखून बड़े हुए होते थे, बेतरतीब ढंग से उनके बाल बिखरे हुए होते थे। मैंने बहुत गहराई से इस समस्या पर मंथन करना शुरू किया कि किस तरीके से इस समस्या को जड़ से मिटाया जाए। अगर समस्या जड़ से नहीं मिटती तो
उसे कम कैसे किया जाए। तो मैंने इस समस्या को अपने साथी शिक्षकों के साथ साझा किया। तब मुझे ज्ञात हुआ कि यह जो समस्या है कि बच्चे साफ सुथरे बनकर नहीं आते, वो हमारे विद्यालय की ही नहीं अपितु देश के प्रत्येक सरकारी विद्यालय की है। तभी से मैंने इस समस्या पर कार्य करना शुरू किया। सर्वप्रथम मैंने अपनी कक्षा में अपने ही कक्षा के छात्रों से मिलकर के एक स्वच्छता चार्ट का निर्माण किया। उस स्वच्छता चार्ट पर सभी बच्चों के नाम तथा कम से कम 5 स्वच्छता संबंधी आदतों को लेखांकित किया गया। जब भी मैं प्रतिदिन कक्षा में बच्चों की उपस्थिति लेती थी, अटेंडेंस लेती थी, तो मैं उनसे 5 प्रश्न पूछा करती थी। क्या आज आप नहाए? क्या आज आपने कंघी की? क्या आज आपने ब्रश किया? क्या आज आपने खाना खाने से पहले हाथ धोए? तो जो बच्चा जिस अच्छी आदत का अनुसरण करता था, वो उस आदत के नीचे अपने आप को 1 स्टार देता था। सप्ताह के अंत में उन बच्चों के सितारों को गिना जाता था और जिस बच्चे को सबसे अधिक स्टार प्राप्त होते थे, उसे कक्षा का सितारा घोषित कर दिया जाता था तथा तालियां बजवाकर, पुष्प गुच्छ दे करके या फिर हाथ से कोई कलाकृति देकर उस बच्चे को पुरस्कृत किया जाता था। जिसका परिणाम यह निकला कि कक्षा के अन्य छात्र भी बहुत अधिक प्रोत्साहित हुए तथा उनमें भी कक्षा का सितारा बनने की ललक उठने लगी और धीरे धीरे उन्होंने भी स्वच्छता संबंधी आदतों का अनुसरण करना शुरू कर दिया। प्रारंभ में अभिभावक अपने बच्चों की सफाई के प्रति ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जिस बच्चे को कक्षा का सितारा बनाया जाता था, उनके अभिभावकों को प्रार्थना सभा में बुला करके उन्हें सम्मानित किया जाता था, उनके लिए तालियां बजवाई जाती थी, जिससे अन्य अभिभावक भी प्रेरित हुए और धीरे धीरे सभी अभिभावक विद्यालय से जुड़ने लगे। धीरे धीरे यह सकारात्मक परिणाम विद्यालय में देखने को मिले कि कक्षा में जो बच्चे नियमित रूप से नहीं आते थे, वो कक्षाएं नियमित रूप से अटेंड करने लगे, उपस्थिति दर में वृद्धि होने लगी, धीरे धीरे नामांकन दर में वृद्धि होने लगी। बच्चे जो बीमार रहते थे, अब वो बीमार नहीं रहते थे, क्योंकि उनमें स्वच्छता संबंधी आदतों का विकास धीरे धीरे हो रहा था, वो उन आदतों का अनुसरण कर रहे थे। मुझे बहुत खुशी है कि अरविंदो सोसाइटी और एचडीएफसी बैंक ने मुझे अपने नवाचार को अन्य नवाचारी शिक्षकों के साथ साझा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया, एक ऑनलाइन अवसर प्रदान किया है। तो मैं सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मेरी तरह ही अन्य शिक्षकों के नवाचारों को समझने के लिए, उन्हें जानने के लिए आप ZIIEI के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्री अतुल रमाकोम प्राइमरी मराठी स्कूल चिस्ता कुकरपाड़ा प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब दादरा नगर हवेली से हूँ। मैं यहाँ पिछले 8 साल से डेली शिक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो हमारी जब पिछले साल अरविंद सोसाइटी द्वारा ZII की ट्रेनिंग हुई थी, तो हमको बताया था कि आप अपने स्कूल में कुछ नया करते हो तो हमारे साथ नवाचार के रूप में शेयर कीजिए। तो मैंने जो मेरे स्कूल में कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो मैंने शेयर किया था। उसमें मैंने नई दोस्ती नई शिक्षा के नाम से एक नवाचार शेयर किया था और वो मेरा नवाचार सिलेक्ट भी हुआ था। और हम सभी शिक्षक गणों को जो सिलेक्ट हुए थे, उन सभी को दिल्ली में बुलाकर MHRD मिनिस्टर माननीय श्री निशंक पोखरियाल सर द्वारा पुरस्कृत किया गया था। लेकिन मैं किसी कारणवश वहाँ पहुँच नहीं पाया था। लेकिन ये मेरा जो नवाचार है वो क्या था कि नई दोस्ती नई शिक्षा। इसमें क्या था कि जो बच्चे अपने स्कूल में रहते वो हर सब्जेक्ट में होशियार नहीं रहते थे। कोई मैथ में होशियार रहता था तो वही बच्चा इंग्लिश में कमजोर रहता था, कोई इंग्लिश में होशियार रहता था तो कोई मैथ में कमजोर रहता था। तो मैं क्या करता था, उन बच्चों को सिलेक्ट करता था और जो मैथ में होशियार रहते थे उनको मैथ में कमजोर बच्चे रहते थे उसके साथ दोस्ती बना के देता था। और जो होशियार बच्चा रहता था उसको मैं बोलता था कि इसको जब भी आपको समय मिले तब ये पढ़ाने का है। वो स्कूल में भी कभी फ्री वक्त समय मिलता था उस समय पढ़ाता था, जब घर पे अगर नज़दीक रहता उस समय भी पढ़ाता था। और उस कमज़ोर बच्चे को कभी कोई प्रॉब्लम आता था तो वो इजीली वो अपने दोस्त को बोलता था।
इस तरह से मेरी आइडिया वहाँ स्कूल पे एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उससे बच्चे बहुत इजीली पढ़ते थे। उनको कुछ प्रॉब्लम आता था तो वो टीचर को बोलने के लिए डरते थे, लेकिन अपने साथी को, अपने दोस्त को इजीली बोलते कि मुझे ये नहीं आया, मुझे ये पढ़ाओ, और वो बच्चा उसको पढ़ाता था और इजीली वो बच्चा सीख जाता था। इस तरह से बच्चे अपने आप थोड़े थोड़े इम्प्रूवमेंट होते आ रहे थे और मेरा भी काम इजीली हो जाता था। तो इस तरह से ये मेरा नवाचार चलता था। जब वो बच्चा मैथ में होशियार हो जाता था तो उसको दूसरे बच्चे के साथ मैं दोस्ती बना के दे देता था। इस तरह से मेरा एक्सपेरिमेंट चल रहा था। धन्यवाद। नमस्कार, मैं श्रीमती मोतीबेन जानूभाई कड़ू, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एंड दीव से प्राथमिक गुजराती केंद्र शाला सुरंगी में सर्वप्रथम ZIIE श्री अरविंद सोसाइटी को दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें दिल्ली बुलाकर अवार्ड से सम्मानित किया, मेरे नवाचार को सिलेक्ट किया और दिल्ली में बुलाकर अवार्ड से सम्मानित किया। इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नवाचार का नाम है शब्द भंडोर बॉक्स। उसका मुख्य हेतु है कि बच्चों में शब्दों ज्ञान का भंडार बढ़े और आत्मविश्वास बढ़े। जब मैं कक्षा में अध्यापन कार्य करवा रही थी तो शब्दों परिचय में बहुत सी कठिनाई आई। बच्चे शब्दों को समझ ही नहीं पा रहे थे, इसीलिए हमें यह नवाचार का प्रयोग करना पड़ा। यह नवाचार का प्रयोग करने में ज़्यादा साधन सामग्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक वेस्ट बॉक्स लेना है, रद्दी कागज लेना है और पेन। बच्चों को अगले ही दिन बताना है कि 5 बच्चे को यह शब्द लिख कर लाना है, चाहे वो कौन सी भी भाषा हो, गुजराती हो, मराठी हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो। 5 शब्दों लिख कर लाना है और पढ़कर भी लाना है। ये शब्दों को कक्षा में प्रस्तुत करना है। प्रस्तुत करने के बाद बॉक्स में डालना है। महीने के अंत में जब वह शब्दों का पुनः पुनरावर्तन करवाना है। पुनरावर्तन हो जाने के बाद बच्चों को उसमें से खेल खिलवाना है, जैसे कि शब्द की साकल, शब्द रमत, समानार्थी शब्द, विरोधार्थी शब्द वगैरह हम करवा सकते हैं। यह नवाचार करने से मेरे कक्षा में काफ़ी सुधार आया है। जैसे कि पहले बच्चे शब्दों को नहीं समझ पा रहे थे, पर अब भी बच्चे बहुत जल्दी से शब्द समझ जाते हैं और टीचर के सामने बात भी कर पाते हैं। पहले बच्चे नहीं कर पाते थे, कुछ बात बतानी हो तो बहुत हिचकिचाते थे, पर अभी वह बहुत अच्छी तरह से बात कर पाते हैं। इसीलिए यह नवाचार मुझे बहुत अच्छा लगा। यह नवाचार कक्षा 3 में हाल में चालू है। धन्यवाद।